ہم خدا کے کلام میں سے ہم سنیں گے خدا کے کلام ہم سیکھیں گے. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایمان کو میں چاہتا ہوں کہ ایمان جو کہ وہ مضبوط ہو. خدا کے لوگ جو ہیں، خدا کے جو خادم ہیں، نبی ہو، رسول ہو اور کلیسیا ہو، ان کی دعا کے اوپر ہم غور کریں گے کہ نبی جو تھے وہ جہاں پر بھی جاتے اور خدا جو تھا وہ نبیوں کے ذریعے، نبیوں کے وسیلے کہ وہ شفا دیتا اور برکت دیتا، بلیسنگ دیتا. خدا جو تھا وہ نبیوں کے ذریعے جو ہے کہ وہ کام کرتا، نبیوں کے ذریعے، نبیوں کے وسیلہ سے کہ وہ کام کرتا تھا. وہ اپنے جلال کو ظاہر کرتا تھا، اپنی قدرت کو وہ ظاہر کرتا تھا. آج ہم نبی کی دعا کے اوپر ہم غور کریں گے. ایک ایسی ہستی جو ہے کہ جس سے خدا جو ہے وہ یہ ٹھہراتا ہے کہ وہ قوموں کا یعنی کہ باپ ہے، قوموں کا باپ. یعنی کہ وہ ہستی جو ہے کہ وہ ابراہم ہے. آج ہم ابراہم کو دیکھیں گے اور اس کی دعا کے اوپر ہم غور کریں گے کہ ابراہم نے کہ جب ابھی ملک جو ہے جب وہ اس کے گھر میں جب وہ آیا اور ابھی ملک نے کیا کیا، جب وہ اس کی حد میں اور اس کے ایریا میں، اس کے علاقہ میں جب وہ پہنچا، اس کے علاقہ میں جب پہنچا تو ابھی ملک جو تھا وہ بادشاہ تھا. اور اس نے کیا کیا، اس نے ابراہم کی بیوی کو جب اس نے دیکھا تو بڑی یعنی کہ وہ خوبصورت تھی، جو صحرا تھی کہ وہ بڑی خوبصورت. جب ابھی ملک کی نگاہ اس کے اوپر پڑی تو اس کا جو دل جو تھا، اس کا جو ذہن تھا کہ وہ خراب ہو چکا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو یعنی کہ اپنی بیوی یعنی کہ بنا لوں، اپنی بیوی اس کو بنا لوں، کہ وہ بے ایمان ہو چکا تھا اور اس کے اندر لالچ جو تھا وہ آ چکا تھا. لیکن یہ خدا کے خلاف تھا، یہ خدا کے خلاف تھا، یہ کام خدا کے خلاف تھا. خدا ہرگز وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی ملک جو ہے کہ یہ میرا جو پیغمبر ہے، میرا جو خادم ہے یعنی کہ اس کی بیوی کے ساتھ یعنی کہ ایسا ہو، میرے بندہ کے ساتھ ایسا ہو، میرے نبی کے ساتھ یعنی کہ ایسا ہو. خدا ہرگز وہ یہ نہیں چاہتا تھا. لیکن آپ دیکھیں اس نے برا کرنا چاہا، اس نے برا سوچا، لیکن خدا نے اس کے ذہن کو بدلا، خدا نے ان کے دل کو بدلا، خدا نے ان کی سوچ کو بدلا، ارادے کو بدلا. پھر خدا نے کیا اس کی بیوی کے رحم کو بند کیا، رحم کو بند کر دیا. پھر خدا نے اس کی لونڈیوں کو اور اس کی بیوی کو اور ابھی ملک کو بیمار کر دیا. وہ بیمار ہو گئے، وہ ان کے اندر ان کے اوپر بیماری آ گئی، ان کے جسموں میں بیماری آ گئی، کیونکہ انہوں نے غلط سوچا تھا، انہوں نے غلط جو ہے کہ وہ پلان بنایا. یعنی کہ ابھی ملک نے غلط پلان بنا لیا تھا، منصوبہ بنا لیا تھا. یعنی کہ برا کام کرنے کے لیے اس نے پلان بنا لیا، لیکن یہ خدا کے بالکل خلاف تھا.
اور اسی وجہ سے اس کے گھر میں اور اس میں اس کی بیوی میں اس کی لونڈیوں میں اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ بیماری کے آ گئی. آج ہم یہ دیکھیں گے, آج ہم یہ دیکھیں گے. اس کے بعد جو ہے کہ پھر جب زیر بدلا ابھی ملک کا, اس کے دل میں خوف آ گیا, اس کے دل میں ڈر آ گیا کہ یہ خدا کا نبی ہے, یہ خدا کا پیغمبر ہے, اور میں نے اس کی بیوی کے بارے ایسا کیوں سوچا ہے, میں نے ایسا کیوں خیال باندھا ہے, ایسا میں نے کیوں ارادہ کیا ہے. اور وہ ڈر گیا, خوف زدہ ہو گیا. اس نے ابراہم کو بلایا, ابراہم کو بلا کر اس سے کہا کہ میرے ساتھ کہ تو نے ایسا کیوں کیا, تو نے کیوں جھوٹ بولا ہے کہ یہ میری بہن ہے, کیوں میرے ساتھ کہ تو نے ایسا کیا. کہ جب ابھی ملک نے کہ جب اسے دیکھا تو ابراہم نے کہا کہ یہ میری بہن ہے, یعنی کہ اپنی بیوی کو کہا یہ میری بہن ہے, یعنی کہ وہ ابھی ملک سے وہ ڈر گیا تھا, اسی وجہ سے ڈر گیا تھا کہ میری بیوی کی وجہ سے میری جان بچ جائے, میری جان بچ جائے. وہاں پر ابراہم نے بھی جھوٹ بولا ہے کہ یہ میری کیا ہے کہ بہن ہے, یہ کہنے کے بجائے کہ یہ میری بیوی ہے, لیکن اس نے کیا کہا کہ میری بہن ہے. تو ابھی ملک نے یہ سوچا کہ یہ اس کی بہن ہے کہ چلے میں اس کو اپنی بیوی جو ہے کہ وہ بنا لیتا ہوں, لیکن خدا ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا. آئے جلا حوالہ اس کو دیکھے, دیکھیے گا جلا خدا کے کلام کو, خدا کے کلام کو جلا ہم دیکھتے ہیں. جلا بڑی زبردست یہ ایک واقعہ ہے اور یہ بات ہے. اچھا 20واں باب ہے پیدائش کی کتاب, اس کا 20واں باب, پیدائش کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 47ویں اور 18ویں ہے. ہاں میں چاہوں گا کہ بیٹا ایوب جب وہ کھڑے ہو کر کہ وہ اس حوالے کو پڑھیں گے. خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے, تب ابراہم نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابھی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی اور ان کی اولاد ہونے لگی, کیونکہ خدا نے ابراہم کی بیوی سارا کے سبق سے ابھی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے. اللہ کا پاک کلام بڑا سنا جنم سب کے لیے بھائی سے بڑھ کر. پیدائش کی کتاب میں 20 باب 47 اور 18 آیت میں ہم دیکھتے ہیں, پہلے ہم 47 آیت پر غور کرتے ہیں. 47 آیت میں لکھا ہے کہ تب ابراہم نے خدا سے دعا کی, تب کہ ابراہم نے خدا سے کیا کی بھی دعا کی. کس سے دعا کی؟ خدا سے دعا کی. دعا کا طریقہ کہ خدا سے دعا کی کہ وہ جانتا ہے کہ میں نے کس کے آگے دعا کرنی ہے, وہ اس بات کی پہچان رکھتا ہے کہ میں نے اپنے خدا کے آگے دعا مانگنی ہے, دعا کرنی ہے. اس نے خدا سے دعا کی, خدا کے آگے التجا کی ہے, خدا کے آگے فریاد کی ہے, خدا کے آگے منت کی ہے. وہ یہ بات کو جانتا ہے کہ خدا جو ہے کہ وہ میری سنے گا. ہاللویا, کہ خدا میری سنے گا, کہ خدا جو ہے وہ میری دعا پر, میری فریاد پر, میری منت پر, میری مناجات پر کہ وہ کان لگائے گا. ہاللویا, وہ کان لگائے گا, میری دعا کو سنے گا. وہ اس بات پر وہ یقین رکھتا ہے, وہ اس بات پر وہ بھروسہ رکھتا ہے کہ جس کی حضوری میں میں آیا ہوں, جس کے آگے میں جھکا ہوں, اور جس کے آگے جو ہے وہ میں جھک چکا ہوں, جس کے آگے میں نے دعا کی ہے کہ وہ میری دعا کو وہ سنے گا اور میری دعا کا کہ وہ جواب دے گا. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. کس کے آگے دعا کی ہے؟ خدا کے آگے دعا کی ہے. اور جب اس نے خدا کے آگے دعا کی تو کلام میں لکھا ہے اور خدا نے ابھی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی اور ان کے اولاد
होने लगी है। अभी मलक को किसने यानी कि शफा दी है? लिखा है कि अब्राहम ने दुआ की और फिर लिखा कि खुदा ने अभी मलक को और उसकी बीवी को, उसकी लोंदियों को क्या बख्शी? शफा बख्शी है। और अभी मलक जो है तो वो भी बीमार पड़ गया, उसकी बीवी जब वो भी बीमार पड़ गई, उसकी लोंदियां, उसकी गुलाम जो उसकी जो काम करने वाली थी है कि वो भी बीमार पड़ गई, बीमार हो गई है। और खुदा ने के अभी मलक को अब्राहम की दुआ से जब खुदा के पैगंबर ने, खुदा के नबी ने खुदा के आगे दुआ की तो लिखा है कि खुदा ने अब्राहम की दुआ को सुना। कि खुदा ने क्या किया? अभी खुदा ने अब्राहम की दुआ को सुना और ये जवाब है अब्राहम की दुआ का ये जवाब है भाई, उसकी मुनाजात का जवाब है, उसकी इल्तिजा का जवाब है, उसकी पुकार का ये जवाब है कि खुदा ने क्या किया कि खुदा ने अभी मलक को सेहतियाब बना दिया, शफायाब बना दिया, तंदुरुस्त कर दिया, उसकी बीवी को जो है बीवी को शफायाब बना दिया, सेहतियाब बना दिया और उसकी लोंदियों को भी शफायाब बना दिया। उसके घर में से और उनकी जिंदगियों में से कि जो बीमारी आ चुकी थी, कि जो उनकी जिंदगियों में बदअमनी, बेचैनी, बेसुकूनी जो आ चुकी थी, और खुदा ने क्या किया? उनके घर में से निकाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो लिखा है कि खुदा ने बाद में लिखा कि उनके औलाद होने लगी भी, पहले शफा दी खुदा ने, है औलाद होने लगी, औलाद जैसी बरकत जो है कि खुदा ने जारी कर दी। हालेलुया, हालेलुया। आज औलाद के जिसके ना हो आप उससे पूछे, जिससे औलाद ना हो उससे आप पूछे कि वो आपको बताएगा, है वो अपना दुख जो है वो आपके साथ वो शेयर करेगा, है ये औलाद जो है ये खुदा की तरफ से मेरास है और ये ब्लेसिंग है, ये बरकत है। और खुदा जो है कि अब्राहम के सबब से, अब्राहम की बीवी के सबब से कि खुदा ने वहाँ पर उनको शफा भी दी और बरकत भी दी, औलाद जैसी बरकत। हालेलुया। अब्राहम अभी मलक के घर में आया तो बीमारी जाती रही। हालेलुया। अभी मलक के अभी मलक के उसके घर में जब अब्राहम खुदा के आगे झुका, अब्राहम के आगे झुका, खुदा के आगे झुका तो खुदा ने क्या किया? अभी मलक के घर के अंदर के अपनी कुदरत को और अपने जलाल को यानी कि जाहिर किया है। क्या किया है? अपने जलाल को जाहिर किया है। उनके जो बंद रहम थे कि खुदा ने अब्राहम की दुआ से यानी कि वो खोल दिए। हालेलुया, खोल दिए। आप देखें जो नबी थे, जो पैगंबर थे, उनकी दुआ की कितनी अहमियत है। हालेलुया, कितनी वैल्यू है कि खुदा के नबी दुआ करे और खुदा उनकी दुआ का जवाब दे। है अभी मलक उसकी दुआ को खुदा ने क्यों नहीं सुना? वो भी दुआ करते ही होंगे अपने महबूब को, जिसको वो मानते होंगे, क्यों भी जिसको वो मानते होंगे उसके आगे वो दुआ तो करते ही होंगे। वो अपनी बीमारी के लिए दुआ तो मांगते ही होंगे, वो औलाद के लिए वो दुआ तो मांगते ही होंगे, लेकिन उनको तो कोई जवाब नहीं मिला है। जब अब्राहम ने उसके घर में खुदा के आगे झुका तो अब्राहम की दुआ जो है कि वो सुनी गई है। और अब्राहम की दुआ से यानी कि खुदा ने अभी मलक जो बादशाह है, जो कौम का उनकी कौम का वो पेशवा है, यानी कि उसको शफा दी, उनके बदन को बहाल कर दिया। हालेलुया, सेहत बना दिया। और आज भी याद रखे कि खुदा अपने लोगों की दुआ को वो रद्द नहीं करता है। जब वो कोई शख्स उनके पास आ जाए, कोई शख्स उनके पास आ जाए दुआ के लिए, जब खुदा के लोग दुआ करते हैं तो खुदा जो है उनकी दुआ
सुनता है, उनकी दुआओं का जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और हवाला देखेंगे, एक और हवाला देखेंगे। देखिए जरा, निकाले जरा। यकूब का आम खाता है, यकूब का आम खाता हम देखते हैं। यकूब का आम खाता है, उसका 5वां बाब है। यकूब का आम खाते 5वां बाब को हम देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें हमें मिलेगी। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है। अच्छा, यकूब का आम खाते उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोर से दुआ की कि मी ना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मी ना बरसा। अब एलिया जो ये भी पैगंबर है, ये भी नबी है। एलिया जो है ये नबी है, पैगंबर है। और जब बड़ी कौम इस्राइल नाफरमान हुए, हुक्मदूनी की, खुदा से वो दूर हो गए, खुदा से वो दूर चले गए, गैर मबूदों के आगे वो झुकना शुरू कर दिया, उनकी इबादत, उनकी पूजा, उनकी सताइश करना शुरू की, तो ये बात यानी कि खुदा को पसंद ना आई। ये बात खुदा को पसंद ना आई। और एलिया ने जब देखा कि ये लोग जो हैं ये गुनाह में और बदी के अंदर हैं, और एलिया जो है वो खुदा के हुजूर खड़ा हुआ। गौर कीजिए, एलिया खुदा के हुजूर खड़ा हुआ और खड़ा होकर बड़े गुस्से के साथ वो खुदा के हुजूर में आया, और खुदा के हुजूर में वो खड़ा होकर खुदा को कहता है कि ऐ खुदा के 3.5 बरस तक के मी जमीन पर ना बरसे। क्या ना बरसे? मी ना बरसे, यानी कि बारिश ना हो। किसको कह रहे हैं? खुदा को कह रहे हैं, यानी कि पाक हस्ती को, यानी कि खुदा को वो फरमा रहा है, खुदा को कह रहा है। खुदा का जो नबी है, खुदा का जो पैगंबर एलिया जो है, कि वो अपने खुदा को कह रहा है कि खुदा कि अब जमीन पर जो है कि वो बारिश ना हो। कितने साल? 3.5 बरस, 3 साल और 6 माह के जमीन पर बारिश ना हो। आप गौर कीजिए है कि खुदा उसकी दुआ पर कान लगाता है, उसकी मुनाजात पर कान लगाता है, और खुदा को जाहिर बात है कि उसका नबी है, उसका पैगंबर है, उसका बंदा है, जो यानी कि उसके पीछे चलता है, उसके आयन मानता है, उसके हुक्म मानता है, उसके कवानीन मानता है, उसके वो ताबे है, उसका वो वफादार है, उसके साथ वो चलता है, तो खुदा ने उसकी बात को मानना है, उसकी बात को रद्द नहीं करना। जो एलिया कह रहा है खुदा ने उसकी सुननी है, उसकी बात को मानना है। और कलाम में लिखा कि 18वीं आयत को देखिएगा जरा। 18वीं आयत में लिखा है, 18वीं आयत में लिखा है कि मी ना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मी ना बरसा है, कि मी ना बरसा। देखिए जरा, 3.5 बरस तक मी ना बरसा। खुदा ने सुनी कि नहीं सुनी है? खुदा ने अपने नबी की दुआ को सुना है। अब लोग जो है परेशान हैं, दुख की हालत में है, पानी ना मिले, खुराक ना मिले, तो फिर क्या होगा? है कि लोग हंसेंगे? लोग तो नहीं हंसेंगे भाई, उनके चेहरों पर उदासी होगी, गमगीनी होगी, और आंसू हो गए। पानी ना मिलने से, खुराक ना मिलने से हालात खराब होते हैं, हालात बुरे होते हैं।
और इंसान जो है वो कोशिश करता है कि यहाँ पर चला जाऊं, वहाँ पर चला जाऊं, यहाँ से कुछ मिल जाए, यहाँ से कुछ हो जाए। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन बनी कौम इस्राएल जो है वो नाफरमान यानी जो खुदा की हुक्मदुली जो करते, खुदा को छोड़ देते रास्ते में ही, खुदा को वो नाराज कर देते। जब एलिया ने खुदा के लोगों की, बनी कौम इस्राएल की जब हालत देखी, उनकी हालत को देखकर, उनको देखकर कि अब कि ये लोग जो हैं ये खुदा की तरफ ये फिर आए हैं और वापस लौट आए हैं। इन्होंने नाफरमानी छोड़ दी है, गुनाह छोड़ दिया है, बदी को छोड़ दिया है, नाफरमानी करना छोड़ दी है और इन्होंने इरादा बना लिया कि हम अब खुदा के साथ चलेंगे, हम खुदा के आयन मानेंगे, खुदा के हुक्म मानेंगे, खुदा का खौफ मानेंगे, खुदा का डर मानेंगे, खुदा की राह पर चलेंगे, जो वो कहेगा, जो वो फरमाएगा हम उसको मानेंगे, हम उसको कबूल करेंगे। हम अपने खुदा का जो है अपने दिल के अंदर हम खौफ रखेंगे। हालेलुया। खुदा के लोग होते हैं ना कि वो उतनी देर तक वो दुआ नहीं करते कि जब तक कि तब्दील ना हो जाए, बदल ना जाए, है? लेकिन जब इस्राएल खुदा के लोग जब वो बदल गए, तब्दील हो गए, खुदा की तरफ फिरे, फिर एलिया ने दुआ की, लिखा है ताबीयत में, फिर उसने, और कीजिएगा, है क्या लिखा है? फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। हालेलुया। लिखा कि फिर यानी कि 3.5 बरस के बाद है जब एलिया ने खुदा के लोगों की हालत देखी है कि अब ये वापस आ चुके हैं, तो फिर वो खुदा की हज़ूरी में खड़ा हुआ, फिर वो खुदा के आगे वो खड़ा हुआ और खुदा के आगे उसने दुआ की और खुदा को कहा कि ऐ खुदा क्या आसमान खोल दे, अब बारिश बरसा दे। लिखा है कि बारिश हुई, जमीन पर बारिश हुई और जमीन ने क्या किया? जमीन ने अपनी जो है कि जो उसका काम है, जमीन का काम ये है कि जमीन ने अपनी पैदावार इंसान को दी। हालेलुया। ताकि पैदावार हो और इंसान के पास आए और इंसान जो कि उसको ले और इंसान खाए और उसकी भूख जो है कि वो पूरी हो जाए। हालेलुया। आसूदा हो जाए, शेर हो जाए। हैं? अब्राहम ने दुआ की तो अबीमेलेक के घर में शिफा आई, बरकत आई। अब एलिया ने दुआ की तो आसमान बंद हो गया और एलिया ने दुआ की तो आसमान खुल गया और जमीन पर पानी बरसा और जमीन ने अपनी पैदावार दी। हालेलुया। और आज भी अगर कोई दिल से जब दुआ करता है तो खुदा उसकी दुआ को सुनता है। यूहन्ना के अंजील में 20वें बाब में हमें मिलता है खुदा के जो नबी हैं, खुदा के जो रसूल हैं, खुदा के जो लोग हैं। मैं चाहता हूँ इसको भी चला हवाला पढ़े, चला देखिए, चला यूहन्ना के अंजील निकाले चले 20वां बाब है। बाब है। मैंने ना समय, हाँ जी, ये देखिए जरा 20वां बाब उसकी 23वीं आयत, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। मैं करूँ और आप करेंगे हम गौर, ठीक है। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। ये किनको कहा जा रहा है? ये रसूलों को कहा जा रहा है।
रसूलों को कहा जा रहा है। यीशु मसीह जब आसमान पर जा रहे थे, आसमान पर जाने को थे, आसमान पर जाने से पहले खुदा ने अपने रसूलों के साथ कलाम किया, उनके साथ ये बात की, उनको ये इख्तियार बख्शा, उनको ये कह दिया कि जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे। क्या रखोगे? कायम। इतना बड़ा इख्तियार है कि जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे। खुदा इनके गुनाह कायम रहे, इनके गुनाह ना बख्शे जाए, इनके गुनाह ना माफ किए जाए, तो खुदा जो है वो उनके गुनाह नहीं माफ करेगा। खुदा उनके गुनाह नहीं माफ करेगा, खुदा उनके गुनाह कायम रखेगा, नहीं बख्शेगा। हैं? जब खुदा के रसूल जब अपने खुदा को कहेंगे तो खुदा ने खुद ये कहा, तो खुदा कैसे यानी कि वो अपने इरादे को बदलेगा, कैसे इरादे को बदलेगा भाई, कैसे प्लान को बदलेगा, कैसे अपने कलाम को वो तब्दील करेगा। खुदा खुद कह रहा है, यीशु मसीह खुद कह रहा है कि जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके गुनाह बख्शे जाएंगे, जिनके गुनाह को तुम कायम रखोगे उनके गुनाह कायम रखे जाएंगे। इससे ये इज़हार होता है कि खुदा के जो रसूल हैं, खुदा के जो नबी हैं, उनकी दुआ जो है, जो भी करेंगे उनकी दुआ सुनी जाएगी, उनकी दुआ सुनी जाएगी। अगर कोई कहेंगे कि खुदा के आसमान बंद कर दे तो आसमान बंद हो जाएगा, इनके ऊपर ब्लेसिंग ना आए, इनके ऊपर बरकत ना आए, इनको बरकत ना मिले, तो क्या होगा? बरकत आना बंद हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आपके दिलों में मैं ये खौफ पैदा करूं, डर पैदा करूं कि आपको डरा रहा हूं, नहीं, बल्कि मैं तो आपको कलाम की बात कह रहा हूं कि खुदा के नबियों को, खुदा के रसूलों को ये इख्तियार खुदा देता है, ये इख्तियार खुदा देता है, ये इख्तियार खुदा उनको देता है, उनको बख्शता है कि खुदा के नबियों की, खुदा के रसूलों की, खुदा के खादमों की यानी कि क्या की जाए? इज्जत की जाए, एहतराम किया जाए, अदब किया जाए, है हालेलुया, और उनसे यानी कि बरकत की दुआ ली जाए, उनसे बरकत की दुआ ली जाए, उनसे शफा यानी कि हासिल की जाए, है यानी कि वो शफा देते नहीं है, लेकिन शफा उनमें होकर खुदा देता है। हालेलुया, शफा उनमें होकर खुदा शफा देता है। भाई बरकत नबियों में होकर, रसूलों में होकर कि खुदा उनको शफा और बरकत देता है। जिनको खुदा बरकत दे, जिनको खुदा कह दे, हैं, तो मैं कहता हूँ कि उनकी इज्जत की जाए, उनका अदब किया जाए और उनके साथ अच्छा पेश किया जाए। ठीक है, क्या लिखा यहाँ पर? जिनके गुनाह मेरे साथ बोले, जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके गुनाह बख्शे जाएंगे, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके गुनाह कायम रखे जाएंगे। और ये इख्तियार रसूलों को दिया गया, नबियों को दिया गया। ठीक है, और कलाम में एक और हवाला है, पढ़ूंगा, इसके बाद फिर हम दुआ करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त बात है। अमाल निकाले 4 बाब है, रसूलों के अमाल की किताब है, 4 बाब की 31वीं लिखा है, 29वीं में लिखा, जरा सुनिए बातें, एक ही हवाला है, इसके बाद फिर हम दुआ करेंगे। लिखा है 29वीं में लिखा कि अब ऐ खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाई। क्या लिखा है? अब ये रसूलों की, बुजुर्गों की, जो खुदा को मानते हैं, जो खुदा के करीब रहते हैं, जो खुदा के पास रहते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, ये उनकी दुआ है, ये उनकी फरियाद है, ये उनकी मिन्नत है। क्या कह रहे हैं वो खुदा के हुजूर में? वो ये कह रहे हैं कि ऐ खुदावंद, क्या कह रहे हैं भी? ऐ खुदावंद। नबियों की दुआ पर आपने गौर किया है कि वो उन्होंने दुआ की, अब्राहम ने दुआ की, ऐ खुदा, यानी कि खुदा से दुआ की, खुदा से दुआ की, एलिया ने खुदा से दुआ की है। तो
यहाँ पर रसूल जो है वो किसके आगे दुआ करे कि ऐ खुदावन हमारी दुआ का जो तरीका है वो अलग है, लेकिन रसूल और नबियों की दुआ का तरीका अलग है। वो यानी कि डायरेक्ट यानी कि अपने खुदा के आगे दुआ करते हैं। हालेलुया, डायरेक्ट खुदा से राब्ता करते हैं। हालेलुया, खुदा बाप खुदा बेटे, नो 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 नो, ऐसे नहीं, याद रखे ऐसे नहीं है। यानी कि वो डायरेक्ट ऐ खुदा यानी कि ऐ खुदावन यानी कि खुदा से वो दुआ करते हैं। हालेलुया, और सुनी गई है। हालेलुया, सुनी गई। ठीक है कि ऐ खुदावन उनकी धमकियों को देख, कि जो धमकियां उनको दे रहे थे, बादशाह का जो धमकियां उनको दे रहे थे, किनको? रसूलों को, शहीदों को, जो दुनिया में उनके पास है, उनको जो धमकियां दे रहे थे। और उनकी धमकियां जो है, उनकी शिकायतें जो है वो किसके आगे पेश कर रहे हैं? रसूल यानी कि खुदा क्या क्या खुदा उनकी धमकियों को देख, वो हमें धमकाते हैं, वो हमें धमकियां देते हैं, वो हमें मना करते हैं कि यीशु का नाम लेकर मुनादी नहीं करनी, यीशु का नाम लेकर दुआ नहीं करनी, यीशु का नाम लेकर बात नहीं करनी। क्या खुदावन उनकी धमकियों को देख और क्या कर कि अपने हाथ को बढ़ा और हमें तौफीक दे। क्या दे भी? कि हमें तौफीक दे। कौन सी तौफीक? कौन सी तौफीक वो मांगते हैं? शफा देने की, मौजाद की तौफीक मांगते हैं कि मौजाद हो, शफा का काम हो, लोग तब्दील हो जाए, कि लोग बदल जाए, कि लोग रहाई पा जाए, कि लोग शफा पा जाए, कि लोग तंदुरुस्त हो जाए, ताकि वो इन कामों को देखकर कि वो तेरे नाम को कि वो जान जाए कि तू ही खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। देख अपने बंदों को ये तौफीक दे कि तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए। कैसे कलाम सुनाए? कमाल दलेरी के साथ, कमजोरी के साथ नहीं, है बुझे दिल के साथ नहीं, कमजोर नहीं, बल्कि कमाल दलेरी के साथ। जब वो दलेरी के साथ कलाम सुनाएंगे, दलेरी के साथ मुनादी करेंगे, तो फिर ही यानी कि लोग जो है तो वो जाने के खुदा का रूह जो है इनकी जिंदगियों में है। हालेलुया। अब इन्होंने किसके आगे दुआ की है? अपने खुदावन के आगे दुआ की है। हालेलुया। क्या इनकी दुआ का जवाब मिला? क्या इनकी दुआ का जवाब आता है? क्या इनकी दुआ का इनको जवाब मिलता है? क्या आप ये सुनना चाहते हैं? आपने अब्राहम की दुआ का तो जवाब सुना, आपने एलिया की दुआ का जवाब सुना, और आपने रसूलों की दुआ का जवाब सुना। अब यहाँ पर जो रसूलों ने दुआ की है कि उनकी क्या खुदा उनकी धमकियों को देगा है, क्या इसका जवाब इनको मिला है? 31वें आयत देखे जाए। हालेलुया। इसी बात ठीक है, 30वें आयत में लिखा है, और तू अपना हाथ शफा देने को बढ़ा, तेरे पाक खादम यीशु के नाम से मोज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके, जब वो दुआ खत्म कर चुके हैं, आगे लिखा है, तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया। हालेलुया, हालेलुया। रसूलों की दुआ, खादमों की दुआ, कि जिस मकान में वो दुआ कर रहे थे, है क्या लिखा कि वो हिल गया, कि वो हिल गया भी। उनकी दुआ से वो जगह, वो मकान वो हिल गया है, और वो सब रूह कुदस से भर गए। हालेलुया। वो सब जितने भी वहाँ पर जमा थे, जितने भी वहाँ पर मौजूद थे, वो सब के सब जो है कि वो रूह कुदस से भर गए। ये इनकी दुआ का जवाब है। हालेलुया। मकान हिल गया, ये इनकी दुआ का जवाब है भाई। उनकी दुआ हटाया नहीं की है, उनकी दुआ रुकी नहीं है, उनकी दुआ रद्द नहीं हुई, उनकी दुआ जो है वो खुदावंद ने सुनी है, खुदा ने सुनी है। उनकी दुआ को सुनकर उनके दरमियान में वहां पर वो खुद उधर आया, और वो ही जगह
وہ مکان جو ہے کہ وہ کیا کرنے لگا؟ ہاللویا، یعنی کہ وہ ہلنے لگا، ہاللویا، ہلنے لگا، بنیادیں ہلنے لگی بھائی۔ کیسی دعا ہے؟ پاورفل، طاقتور دعا ہے، ہاللویا، طاقتور دعا ہے بھائی، پاورفل دعا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ سب روح القدس سے بھر گئے، اور آگے لکھا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو دلیری سے سناتے پھرے، ہاللویا، وہ کلام کو سناتے پھرے بھی دلیری کے ساتھ۔ خدا نے دوبارہ ان کو بحال کیا، زور دیا، طاقت دی، دلیری بخشی ہے۔ آئے خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، نبیوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، رسولوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ آج بھی خدا جن کو بلا لیتا ہے اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے، جس کو دنیا سے الگ کر لیتا ہے، علیحدہ کر لیتا ہے، نبیوں کو خدا نے کیا کیا بھی؟ دنیا سے الگ کیا ہے، رسولوں کو الگ کیا ہے۔ آج بھی جو ہے خداوند جو ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو الگ کرتا ہے، علیحدہ کرتا ہے، وہ اس کے ہیں کیونکہ خدا نے چن لیا ہے۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو خدا ان کی سنتا ہے، ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ ابراہیم کی دعا سے کس کو شفا ملی، برکت ملی؟ ابھی ملک کو ملی، اس کی بیوی کو اور اس کی لونڈیوں کو، ہاللویا، اولاد کی برکت مل گئی، شفا کی برکت مل گئی، ہاللویا۔ خداوند جو ہے مجھے اور آپ کو اس کلام سے، ان باتوں سے ہماری ایمان کو اور مضبوط بنا دے، ہاللویا، ہمارا ایمان بنا دے، ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط بنا دے کہ ہم ہمت نہ ہارے، ہم حوصلہ نہ ہارے، ہم بے دل نہ ہو، ہم مایوس نہ ہو کہ خدا ہماری نہیں سنے گا، نہیں سنے گا بھی، سنے گا۔ اس کی حضوری میں ہمارا آنا باعث برکت ہوگا، ہاللویا۔ چلے خدا آپ کو برکت دے، اس کو